Hello dear students, today geometric progression, miscellaneous exercise 2. See question number 5. Find three numbers in GP such that their sum is 35 and their product is 1000. Now see the solution for question number 5. Let us consider three numbers in GP B. A upon R, A and AR. So these are three numbers in geometric progression where A stands first term of the GP and R for common ratio of the GP. According to the question, sum of three number is 35. You can check here, sum is 35. So sum is 35. This means A upon R plus A plus AR equal to 35. We see that A is common. क्या common है यहाँ पर? A is common. After taking common A, we get remaining terms in the bracket 1 upon R plus 1 plus R equal to 35. When we take common A, so from the first term remaining will be 1 upon R, from the second term remaining will be 1 and from the third term remaining will be R. So it can be written as A multiplied by 1 upon R plus 1 plus R equal to 35. Taking A on the right hand side, we get 1 upon R plus R equals 35 upon A. And taking this plus 1 also on the right hand side, so we get minus 1. First we transfer A, so that will be 35 upon A, and then taking 1 on the right hand side, so this will be minus 1. 1 upon R plus R equal to 35 upon A minus 1, and it is equation first. According to the second question, second condition of the question, their product is 1000. Their product is 1000. Means if we multiply all these three numbers, we get 1000. So since A upon R into AR equal to 1000. This is the meaning of the product of three number in GP is equal to 1000. So we see that R going by R, here A into A becomes A cube equal to 1000. So you can say this implies that A cube equal to 1000. So A cube equal to 1000 means it is 10 cube. Therefore A equal to 10. Taking cube root on both sides, we get A equal to 10. Now from equation first, 1 upon R plus R equal to 35 upon A, but A equal to 10, so we should write here 35 upon 10 minus 1. Now here R into R, that is 1 plus R square upon R equal to, here it goes by 5, 5 7 ja 35, 5 2 ja 10, so this is equal to 7 upon 2 minus 1, and 7 upon 2 minus 1 becomes 5 upon 2. So easily you can say here 1 plus R square upon R equal to 7 upon 2 minus 1, that is 5 upon 2. Now by cross multiplication we get here 2 into 1 plus R square, here 2 multiplied by this numerator, that is 1 plus R square equals R into 5, that is 5R. So here 2 into 1 plus R square equal to 5R, and then open the bracket in the left hand side, we get 2 plus 2R square equals 5R. Now rearranging them in the perfect square terms. So this implies that 2R square minus 5R plus 2 equal to 0. Because here we should take 5R on the left hand side. So this will be negative. So you can say 2R square minus 5R plus 2 equal to 0. Now here 2 into 2 becomes 4. So factorize 4 whose sum is minus 5. Means you can say splitting the middle term, we get 2R square minus 4R minus R plus 2 equal to 0. Now 2 are common in the first two terms. 2 are common in the first two terms. So 2R into R minus 2. Minus 1 common, R minus 2 equal to 0. So 2R into R minus 2 minus 1 into R minus 2 equal to 0. Therefore R minus 2 into 2R minus 1 equal to 0. If R minus 2 equal to 0, then R equal to 2.
If 2r minus 1 equal to 0, then r equal to 1 upon 2. Now we have two values for r equal to 2 and r equal to half, and value of a is 10. Here you can check again, a equal to 10. So you have a equal to 10, r equal to 2, or r equal to half. Now we can find easily three numbers in GP by using the values of a and r separately. When r equal to 2, taking first value of r equal to 2 and a equal to 10, then a upon r becomes 10 by 2, that is 5, a equal to 10, which is second number. Third number, a into r becomes 10 into 2, that is 20. When r equal to 1 by 2, then a upon r becomes 20, because this will be 10 upon 1 upon 2, so this will be 10 into 2 upon 1, that is 20, and a equal to 10, this is the second, and a into r third number, here 10 upon 2, that is 5. So we have three numbers now in GP, 5, 10, 20, or you can say 20, 10, 5. अब यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये 5, 10, 20 क्यों है. देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पर है 5, सेकंड नंबर है 10 और थर्ड नंबर है 20. सो यू कैन से 5, 10, 20 इन जीपी और these numbers 20, 10, 5. तो यहाँ पर 20, 10, 5 means this question has two answers. तो both answers we have to write here. तो दोनों आंसर इतना आसानी से निकल आया. तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन दोनों इक्वेशंस के सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत आसानी से कर सकते हो. और अगर इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना है तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन अदर मेथड्स जो भी होंगे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और लास्ट में आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए नियरली यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में जो इनके करेक्ट आंसर्स मिले हैं 5, 10, 20 और 20, 10, 5, ये हो गए हमारे आंसर्स. अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. See question number 6, which is very important question. Find 5 numbers in GP. Find 5 numbers in GP such that their product is 243 and sum of second and fourth numbers is 10. तो ये यहाँ पर कंडीशन है. अब हमें जो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, वी हैव टू फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी. बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है. वी हैव टू फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी. द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज 5 नंबर्स इज 243. यहाँ पर है 243 और जो सम दिया हुआ है वो सिर्फ सेकंड और फोर्थ नंबर का ही सम है जो कि 10 है. तो सेकंड और फोर्थ नंबर को ऐड करके 10 आना चाहिए और अगर हम ऑल द 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मल्टीप्लिकेशन 243 आना चाहिए. तो ऐसे हमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं और जो जीपी में होने चाहिए, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो आइए इसका सोल्यूशन बताता हूँ कैसे करना है. तो सबसे पहले तो हमें कंसिडर कर लेना चाहिए कि 5 नंबर्स क्या हैं. लेट 5 नंबर्स इन जीपी बी ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर. तो ये 5 नंबर्स हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर एंड ए अपॉन आर स्क्वायर. सी वंस अगेन, फर्स्ट नंबर ए अपॉन आर स्क्वायर, सेकंड ए अपॉन आर, थर्ड ए, फोर्थ ए इंटू आर एंड फिफ्थ ए इंटू आर स्क्वायर. Since product of all the 5 numbers is 243, so a upon r square into a upon r into ar into ar square equals 243. Here r square going by r square, r going by r, here 5 times a, 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा e to the power 5. So a to the power 5 equal to 3 raised to 5. Therefore a equal to 3. When indices are same, so their bases must be equal. So you can say a equal to 3. तो यहाँ पर पावर सेम है तो इनके बेस भी इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडाइसेस रूल. तो a इक्वल टू 3. तो इस फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके हमें मिल गया वैल्यू ऑफ a, दैट इज फर्स्ट टर्म. जो इनका फर्स्ट नंबर यहाँ पर है a अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जो a की वैल्यू में मिली है ये है थर्ड नंबर, दैट इज मिडल नंबर.
अब इसके बाद इस क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है कि सम ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, मीन्स जो ये नंबर है देखो a अपॉन आर, दिस इज द सेकंड नंबर, और फोर्थ नंबर है a इंटू आर। तो a अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 10, ये कंडीशन पर हमें चलना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस a बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 10। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 यहाँ पर है, क्लियरली अभी अभी जस्ट सॉल्व किया गया a इक्वल टू 3। तो वी शुड राइट हियर 3 upon r because it is a upon r, so substituting the value of a on both the places we get 3 upon r plus 3r equal to 10। अब इनको हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में r है तो इसका पूरे का एलसीएम भी r ही हो गया, और यू कैन से मल्टीप्लाइंग बाय r ऑन बोथ साइड्स वी गेट 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और रीअरेंजिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो गया, देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 प्लस 3r स्क्वायर इक्वल टू 10r। नाउ रीअरेंजिंग देम इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ r वी गेट 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल हमें मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, 3 इंटू 3 बिकम्स 9। नाउ फैक्टराइज 9 whose sum is what? minus 10. So we have minus 9 and minus 1 factors. So 3r square minus 9r minus r plus 3 equal to 0 हो गया, splitting the middle term. Now in the first two term 3r common, we get here r minus 3. In the last two term minus 1 common, तो यहाँ r minus 3 equal to 0. तो r minus 3 into 3r minus 1 equal to 0. So r minus 3 multiplied by 3r minus 1 equal to 0. When r minus 3 equal to 0, so r equal to 3. When 3r minus 1 equal to 0, then r equal to 1 by 3. So we have two values now, r equal to 3, r equal to 1 by 3। जैसा कि हम लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 5 में लिया था, वहां पर वैल्यूज ऑफ r क्या थे 2 एंड 1 by 2, और यहाँ पर है वैल्यूज 3 एंड 1 by 3। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने जस्ट अभी अभी देखा कि वहां पर 3 नंबर्स फाइंड करने थे, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करना है 5 नंबर्स। तो आइए अब वैल्यू ऑफ r एंड a, पहले r इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमें जो ये 5 नंबर्स हैं ये क्या मिलते हैं, ये 5 नंबर्स के वैल्यूज। आइए चेक कर लेते हैं। When r equal to 3, when r equal to 3, a upon r square equals 3 in 3 upon 3 square, that is 1 by 3, a by r 3 upon 3, that is 1, a equal to 3 and a into r, here 3 into 3 becomes 9, और यहाँ पर हो गया a into r square, that is 3 into 3 square becomes 27। तो ये जो हमें फर्स्ट सेट में 5 नंबर्स मिले 1 upon 3, 1, 3, 9 एंड 27 हो गए। लेकिन ये तो हो गए जब when r equal to 3, जब हम वैल्यू ऑफ r 3 लेते हैं तो हमें ये 1 by 3, 1, 3, 9 और 27, ये है वैल्यूज a upon r स्क्वायर, a by r, a into r स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। लेकिन हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है r की, r इक्वल टू 1 by 3, उसको यूज करके हमें क्या नंबर्स मिलते हैं आइए देखते हैं। a अपॉन r स्क्वायर, तो जो a का वैल्यू है यहाँ पर है वो कितना है 3 है, और जो r का वैल्यू है वो है 1 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 1 अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो जो 3 स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में है दैट विल कम अप, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 27। a अपॉन r 3 अपॉन 1 अपॉन 3 बिकम्स 9, और a इक्वल टू 3 डायरेक्टली है, a इंटू आर मीन्स 3 इंटू 1 बाई 3 बिकम्स 1, एंड a इंटू आर स्क्वायर that is 3 multiplied by 1 upon 3 square which is equal to 1 upon 3। तो इस तरह से हमें ये जो वैल्यूज हैं 1 upon 3, 27, 9, 3, 1, 1 by 3 are the values of a by r square, a by r, ar and ar square respectively when r equal to 1 by 3। ये ध्यान देना है, when r equal to 1 by 3 we get these numbers 27, 9, 3, 1 and 1 by 3। when r equal to 3 we get the numbers 1 by 3, 1, 3, 9 and 27। तो इस तरह से हमें दोनों ही केसेस में 5 नंबर्स मिल गए हैं, और अगर हम लोग क्लियरली इसको देखें तो ये नंबर्स एक जैसे हम जिस फर्स्ट नंबर को लिखेंगे तो जो उसका रिवर्स ऑर्डर होगा वो दूसरे सेट हो जाएंगे।
तो आइए अब इनके आंसर्स को भी लिखते हैं उसी फॉर्म में। Therefore, the 5 numbers are in GP be 1 upon 3, 1, 3, 9, 27 और 27, 9, 3, 1, 1 by 3। तो ये हमारे 5 नंबर्स हैं। देखो ये सीक्वेंस का अगर हम लोग यहाँ रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं तो ये हमारा सेकंड आंसर रेडी होगा और सेकंड आंसर का रिवर्स ऑर्डर होगा फर्स्ट आंसर। तो कोई भी आंसर फर्स्ट लिख सकते हो, नो बाउंडेशन हियर, यू कैन राइट एनी वन फर्स्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब जो 7th क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर अ सीक्वेंस एसएन, फॉर अ सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस है हमें वो डायरेक्टली जनरल सीक्वेंस न दे करके एसएन के फॉर्म में दिया है। क्या लिखा गया है, एसएन, यहाँ बहुत ही क्लियर ढंग से देख सकते हो, एसएन इक्वल टू 4 इंटू 7⁻n-1। वेरीफाई दैट सीक्वेंस इज अ जीपी। हमें ये प्रूफ करके बताना है कि ये जो 4 इंटू 7⁻n-1 है ये जीपी में है। तो आइए देखते हैं कि जीपी में है तो कैसे है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। For the proof, since Sn equal to 4 into 7⁻n-1, this is Sn given sequence। तो अब हमें क्या करना है, रिप्लेसिंग n बाई n-1, ये दोनों ही प्लेस पर जहां पर n लिखा है उधर हमें n-1 एंट्री कर देनी है। तो देयरफॉर Sn-1 इक्वल टू 4 इंटू 7⁻n-1 तो हमारे पास अब जो वैल्यूज अवेलेबल हो गई वो Sn 4 इंटू 7⁻n-1 एंड Sn-1 4 इंटू 7⁻n-1 ये वैल्यूज हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग इन दोनों Sn और Sn-1 से डायरेक्टली नहीं प्रूफ कर सकते। तो ये रीजन होता है कि हम लोगों को एक फार्मूला यहाँ पर और बाहर रखना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ये जो Tn है दिस इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। अब वो गिवन सीक्वेंस जीपी के लिए है, वो हम चेक कर रहे हैं अभी। तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ये सब ट्रैक करके देखते हैं कि क्या आता है पहले। तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, दिस इज द फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी हैव टू राइट हियर 4 इंटू 7⁻n-1 माइनस 4 इंटू 7⁻n-1 तो ये 4 इंटू 7⁻n-1 एंड माइनस 4 इंटू 7⁻n-1 ये दो पार्ट हमें मिल गए सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, देखो 4 कॉमन इन दीज टू टर्म्स, यहाँ भी 4 कॉमन और यहाँ भी 4 कॉमन। तो इट इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट 7⁻n-1 माइनस 7⁻n-1 प्लस 1, क्योंकि जब हम लोग ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे आफ्टर टेकिंग कॉमन 4 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। और इस 7⁻n-1 एज इट इज हियर 7⁻n-1 माइनस 7⁻n-1 +1, तो -1 एंड +1 गेट कैंसल्ड। तो Tn इक्वल टू 4 इंटू 7⁻n माइनस 7⁻n-1। अब ये 7⁻n माइनस 7⁻n-1 इसमें हम लोग देखो जो इसका सेकंड टर्म है जहां पर अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूं एरो को, तो 7⁻n-1 यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 7⁻n इंटू 7⁻−1 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आफ्टर स्प्लिटिंग 7⁻n इंटू 7⁻−1। तो taking 7⁻n common in these two terms, we get 4 into 7⁻n। तो अब जो यहाँ रिमेनिंग टर्म आएगा ये कॉमन हो चुका है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ होगा 7⁻−1। तो वी शुड राइट हियर इन द ब्रैकेट 1 माइनस 7⁻−1। फिर से देखो, taking 7⁻n common from these two terms, we get here 4 into 7⁻n, here bracket 1 minus 7⁻−1. But 7⁻−1 can be written as 1 upon 7. So it Tn equal to 4 into 7⁻n into 1 minus 1 upon 7. 4 into 7⁻n into 1 minus 1 upon 7. 7 1 just 7 minus 1, that is 6 by 7. तो यहाँ पर हो गया 4 into 6 by 7 into 7⁻n. नाउ इट इज इक्वल टू 24 इंटू 7⁻n-1, क्योंकि देखो ये जो अपॉन 7 है ये गोज टू न्यूमरेटर,
तो यहाँ 7n माइनस 1 एक पावर, ये जब जिसको डिवाइड करोगे और ये ऊपर आ जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1, तो वी शुड राइट हियर 7n माइनस 1। तो ये टोटल हो गया 24 इंटू 7n-1। देखो 4 इंटू 6 24 और 7n अपॉन 7 बिकम्स 7n-1, क्योंकि इसका देखो डिवाइड करना है तो जो भी पावर यहाँ होगी वो 1 लेस हो जाएगी। एक 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7n-1। तो इस तरह से हम लोगों को जो Tn की वैल्यू मिल गई वो Tn है 24 इंटू 7n-1। Tn equals 24 into 7 raised to n minus 1. Therefore, Tn plus 1 equal to 24 into 7 raised to n plus 1 minus 1. अब हम लोग क्या करते हैं, इसी Tn में रिप्लेसिंग n by n plus 1, तो हमें मिल जाता है Tn plus 1 equal to 24 into 7 raised to n plus 1 minus 1. अब ये plus 1 and minus 1 get cancelled, तो क्या बचेगा 7 raised to n only. So it is equal to 24 into 7 raised to n. दिस इज द वैल्यू ऑफ Tn प्लस 1 और Tn की वैल्यू यहाँ पर है। अब क्या करना है, इस दोनों टर्म को हमें इस दोनों को करना है डिवाइड। सिंस Tn प्लस 1 अपॉन Tn इक्वल्स 24 इंटू 7 रेज टू n अपॉन 24 इंटू 7 रेज टू n माइनस 1। 24 गोइंग बाय 24 ये कैंसिल हो गए और इनका जो देखो 7 रेज टू n भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो रिमेनिंग टर्म आता है वो आता है 7 रेज टू माइनस 1। तो यहाँ 1 अपॉन 7 रेज टू माइनस 1, इस 7 रेज टू माइनस 1 को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 रेज टू प्लस 1 दैट इज 7। तो इस तरह से हमें मिला Tn प्लस 1 अपॉन Tn इक्वल टू 7 विच इज अ कांस्टेंट। और यही हमें प्रूफ करना होता है कि अगर Tn प्लस 1 अपॉन Tn कांस्टेंट टर्म आ जाता है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, देन वी कैन से इट इज अ कांस्टेंट विच इज अ कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए एक बार इसको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया था और हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, वो बहुत ही केयरफुली देखो, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले Sn गिवन है, यहाँ पर Sn इक्वल टू 4 इंटू 7 रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर जहाँ n है उधर हम लोग लिखेंगे n माइनस 1, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1, तो वी गेट Sn माइनस 1, हमें Sn माइनस 1 की वैल्यू मिल जाती है। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना होता है Tn, और Tn का फॉर्मूला है Sn माइनस 1। तो चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इनको सिंप्लीफाई भी करना है, जहाँ तक सिंपलेस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इसका जो लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वहां तक सिंप्लीफाई करके ले लेना है। तो जो इसका लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो था 24 इंटू 7 रेज टू n माइनस 1। अब इसके बाद ये Tn आया तो रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1 भी करना होता है, तो रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1 वी गेट Tn प्लस 1 इक्वल टू 24 इंटू 7 रेज टू n प्लस 1 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 24 इंटू 7 रेज टू n। तो सिंस Tn प्लस 1 अपॉन Tn इक्वल्स दिस अपॉन दिस, इनको भी टोटल सिंप्लीफाई कर लेना है और लाना है कांस्टेंट, मींस वी हैव टू प्रूव दैट Tn प्लस 1 अपॉन Tn इज अ कांस्टेंट, और ये हमें कांस्टेंट मिल गया 7। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है या कभी कभी डेसिमल्स में भी आते हैं कांस्टेंट, तो किसी फॉर्म में हो सकते हैं बट इंडिपेंडेंट ऑफ n, इसमें n का टर्म नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हैं कि विच इज अ कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। और जो ये 7 आता है, अगर मान लो कि कॉमन रेशियो पूछा गया है तो यही है हमारा कॉमन रेशियो भी, आर की जो वैल्यू होती है कॉमन रेशियो r इक्वल टू 7 इन केस पूछा गया तो। और अगर हमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है तो पुट n इक्वल टू 1 हियर, T1 हमें यहाँ पर मिलेगा 24 इंटू 7 रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, 7 रेज टू 0 की वैल्यू होगी 1, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 24। इस तरह से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टर्म Tn अवेलेबल है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस अप टू n टर्म्स, मीन्स फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस। क्योंकि देखो यहाँ प्लस 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 करके लिखा हुआ है, जिसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, इनके सभी टोटल को अगर हम प्लस करें अप टू n टर्म्स तो हमें क्या मिलेगा। जैसे अब इसमें अगर हम n टर्म्स के लिए फाइंड कर लेते हैं तो हम इसको 10 टर्म्स
15 टर्म्स, 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स, जितना भी निकालना है निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n। तो आइए टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इंटरेस्टिंग वे से सॉल्व किया करना है। सिंस 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस 2222 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये हमारे पास सब 2 2 2 2 2 2 2 ही दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको लेते हैं कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम ईच। अगर हम लोग 2 को कॉमन कर लिए मीन्स हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं सभी टर्म को, तो 2 कॉमन हो गया। तो इन द ब्रैकेट 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस अप टू n टर्म्स चलता रहेगा ये सीक्वेंस। लेकिन हम लोग करते क्यों हैं ऐसा? क्योंकि देखो जो हमारा गिवन सीक्वेंस है ये ना तो AP है और ना ही GP है और ना ही HP है। देखो अगर हम लोग 22 माइनस 2 करते हैं तो 20 आता है, और जब जैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 200 आता है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और 22 अपॉन 2 करते हैं तो 11 आता है, लेकिन 222 अपॉन 22 करते हैं तो ये 10 पॉइंट समथिंग में चला जाता है, तो वो भी सेम नहीं है। मीन्स कॉमन रेशियो भी इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो तभी होगा जब ये AP बनाएगा। तो तीनों ही सीक्वेंसेस का टेस्ट यहाँ पर फेल हो जाता है। ये रीज़न होता है कि हम लोगों को इसको दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है। दिस इज द प्रॉपर रीज़न, ये सफिशिएंट रीज़न है यहाँ पर कि सभी टर्म्स जितने भी हैं वो एक सिमिलरिटी होती है इसमें। सिमिलरिटी का मतलब उनके नंबर सेम होते हैं। तो ये ना तो AP फॉर्म कर रहा है और ना ही GP और ना ही HP। तो अगर ये किसी सीक्वेंस को फॉर्म नहीं करते तो क्या करना है? देखो 2 कॉमन किया, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस अप टू n टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर भी ये ना तो AP है ना GP है ना HP है। ऐसा नहीं कि हमने कॉमन कर लिया तो कन्वर्ट हो गया, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि मैं एक्सरसाइज पढ़ाने के टाइम भी बताया था, और वो सोल्यूशन था हमारा एक्सरसाइज 2.2 के लिए। तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जा करके पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हो। और जिनको फार्मूला लिस्ट नहीं मालूम है तो लोग फार्मूले में भी जा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। फार्मूला लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिया गया एक लिंक है, उसको टच कीजिए और वो सीधे सीधे फार्मूला लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 9 एंड डिवाइडिंग बाय 9। तो जो डिवाइड किया वो तो हमने बाहर ले लिया 2/9, लेकिन जो मल्टीप्लाई किया इन ईच टर्म तो ये क्या हो जाएंगे 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन प्लस अप टू n टर्म्स। अब ये जो 22222 में थे वो सब 999 में कन्वर्ट हो गए, सब 9 वाले फॉर्म आ गए यहाँ पर। अब ये 9 वाले फॉर्म आ गए तो क्या AP, GP, HP कुछ फॉर्म हुआ? नहीं, अब भी नहीं हुआ, क्योंकि चाहे 2 के फॉर्म में है, 1 के फॉर्म में है, 9 के फॉर्म में है, तो सिमिलर, एक भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से हमारा थोड़ा काम बनता हुआ नजर आता है कि ये 2/9 एज इट इज, 9 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 1, ये यहाँ पर है। 99 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1, एंड 999 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 1 दैट इज 10 क्यूब माइनस 1। इसी तरह से 9999 कैन बी रिटन एज 10,000 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 4 माइनस 1। ऐसे ही ये सीक्वेंस चलता रहेगा 10 रेज टू 5 माइनस 1, 10 रेज टू 6 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि 2/9 एज इट इज जैसा है वैसा ही रखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट ये कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है 10, हियर इट इज 10 स्क्वायर, हियर इट इज 10 क्यूब, हियर इट इज 10 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। So we should write here 2/9 in the bracket 10 plus 10 square plus 10 cube plus 10 to the power 4 plus n times, या up to n terms भी लिख सकते हो, माइनस। अब ये जो सेकंड टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट है देखो -1 -1 -1 -1, और ये भी n टाइम्स चलता रहेगा, n टर्म्स तक ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो टेकिंग माइनस साइन आउट ऑफ द ब्रैकेट, ये माइनस साइन हो गया कॉमन,
तो इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स ये भी चलता रहेगा। तो अब इसके बाद देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये जो n टाइम्स है बिकम्स n, इसको तो हमने लिख दिया यहाँ पर, इसका जो माइनस साइन था हियर एज इट इज माइनस n, मीन्स सेकंड ब्रैकेट इजिली सॉल्व हो गया, इट इज n। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 टाइम्स है 3, 5 टाइम्स है 5, 10 टाइम्स है 10, 100 टाइम्स है 100, n टाइम्स है तो n। तो यहाँ पर मिल गया हमें n। अब इसके बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में सीक्वेंस यहाँ देख रहे हो, ये सीक्वेंस अब ये जीपी फॉर्म कर रहा है। देखो a इक्वल टू 10 एंड कॉमन रेशियो कहीं से भी फाइंड कर लो। देखो 10 स्क्वायर अपॉन 10, 10 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर, 10 टू द पावर 4 अपॉन 10 क्यूब, सब जगह 10 ही मिल रहा है। नाउ दे आर इन जीपी। तो a इक्वल टू 10 एंड r इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म भी 10 है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी 10 ही है। तो जो इसका फार्मूला है वो मैं बता देता हूं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हमारे पास a की वैल्यू है 10, r की वैल्यू है 10, तो दिस विल बी 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। तो ये फुल सेंटेंस को मैं एक बार रिपीट करता हूं कि इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n ब्रैकेट क्लोज्ड। इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 9, यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 हो गया माइनस n, तो 9 इंटू n बिकम्स 9n। सो इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9n अपॉन 9। 9 इंटू 9 देखो दोनों ही डिनोमिनेटर में बिकम्स 81, सो दिस विल बी 2 अपॉन 81 इन द ब्रैकेट 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 9n, ये रहा यहाँ पर। तो देयरफॉर सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस Sn, तो Sn इक्वल टू 2 अपॉन 81 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9n। Sn इक्वल टू 2 अपॉन 81 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9n ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये जो यहाँ पर टर्म्स आए ये सभी टर्म्स क्लियरली जनरल टर्म्स हैं, और अब हमें अगर इसी सीक्वेंस के कितने भी टर्म्स का सम फाइंड करना है तो जस्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n। जैसे अगर हमें फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स, तो n इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे बोथ द प्लेसेस, और इनको पूरा सिंप्लीफाई कर लेना है, हमें एक नंबर मिल जाएगी, दैट विल बी सम ऑफ 5। 20 टर्म्स का फाइंड करना है, 10 टू द यहाँ पर पावर 20 होगा, बहुत हायर हो जाएगा, तो लेकिन सम मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। तो एक्सपैंड करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग कितने भी टर्म का सम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एक जनरल सोल्यूशन, Sn इक्वल टू 2 अपॉन 81 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस 9n। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और अभी रिमेनिंग चैप्टर्स को भी प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।